हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी पाटिल और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ग्लोबली एंड इन इंडिया, आयुर्वेद एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस एनिमल मिल्क, बेनिफिट्स टू मदर एंड सोसाइटी, मदर्स मिल्क वर्सेस फॉर्मूला मिल्क एंड एट लास्ट टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू WHO। ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट और ए यंग चाइल्ड विथ ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है इन्फेंट यानी कि 1 साल की उम्र तक के बच्चों को करवाया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट, दैट इज़ वाया लैक्टेशन. It is the normal way of providing young infants with the nutrients they need for healthy growth and development. और ब्रेस्ट मिल्क जो है ये प्रॉपर फूड है इन्फेंट्स के लिए जिनकी एज जो है 1 साल से कम है. इवन दे डू नॉट नीड वाटर. Then after it also defend against the infections, prevent allergies and protect against a number of chronic condition. It also forms a bond between mother and child which encourage the mother to breastfeeding her baby, because the emotional state of mind of mother is very important in production of breast milk, as breast milk flow depends partly on the mother's thoughts and feelings and sensation, and it is important to keep mothers and babies together day and night and to help mothers to feel good about breastfeeding. Then during breastfeeding, there is no requirement of supplements like water, glucose water, commercial infant formula or other fluids, as it is the whole food for the infants. Then what is the composition of breast milk? इट वेराइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बेबी. मतलब बेबी की जैसे जैसे एज एडवांस होती है उसके हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन भी चेंज होते जाता है. वो कैसे हम देखते हैं. तो इनिशियली कोलोस्ट्रम देखने को मिलता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी. इट इज़ येलो, थिक एंड इट हैज़ मोर एंटीबॉडीज एंड WBC. इट हैज़ एंटीबॉडीज लाइक IgG, IgM एंड IgA and WBCs like lymphocytes. Then after it is secreted in very small quantities so that it should never be discarded. It is essential to give infants. Then after it is low in fat content and high in protein. देन आफ्टर कोलोस्ट्रम जो है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वेरी लो कंसनट्रेटेड फॉर्म में बेबी को सर्व करता है, जिसकी वजह से बेबी का जो इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है. और कोलोस्ट्रम माइल्ड लेग्जेटिव भी होता है. दैट मीन्स जो बेबी का जो फर्स्ट स्टूल होता है जिसे मैक्रोनियम कहते हैं वो विच इज़ एक्सेस इन बिलीरुबिन. तो लेग्जेटिव होने की वजह से कोलोस्ट्रम लेग्जेटिव होने की वजह से वो इजीली बाहर निकल जाता है. एक्सेस बिलीरुबिन भी डिस्कार्ड हो जाता है और न्यूनेटल जॉन्डिस के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं. देन आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क इट इज़ सिक्रेटेड ड्यूरिंग 2 वीक्स. तो अब जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा है तो उसमें फैट और शुगर कंटेंट बढ़ता जाएगा एज पर द कैलोरी रिक्वायरमेंट, एंड इट कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड लो प्रोटीन कंटेंट. Then after mature milk, it follows the transitional milk. It is thinner and watery, contain all the essential nutrients for the growth of the baby. Then preterm milk, it is specially formed for the baby who have the age of less than 37 week. It is high quantity protein, sodium, iron and immunoglobulin, and it satisfy the demand of calorie also. Then after fore milk and hind milk are the concepts depending upon the process of the breast milk secretions. Fore milk means milk secreted at the start of a feed, which is watery, rich in protein, sugar, vitamins, minerals and water. So essentially it satisfies the baby's thirst. Then after hind milk, it comes later towards the end of a feed, which is richer in fat content so that it satisfy the baby's hunger. So both hind milk and fore milk are necessary for the baby's optimal growth. The babies who receives only fore milk cries excessively. Then after, what is the present condition globally? Then globally only 38% of infants age group of 0 to 6 months are exclusively breastfed. मतलब 100 बच्चे अगर है 0 से लेकर 6 महीने तक की एज वाले, तो उनमें से सिर्फ 38 ही ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलता है. देन बिकॉज वाई द वर्ड एक्सक्लूसिव इज़ यूज हियर, बिकॉज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसको दिन में एटलीस्ट 8 से 12 बार तो ब्रेस्ट फीड करवाना ही है इन्फेंट को. और बिकॉज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द इररिप्लेसेबल न्यूट्रिशन. मतलब इवन अगर एनिमल मिल्क लाइक काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, इवन फार्मूला मिल्क, वो भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. इट इज़ वेरी मच एसेंशियल.
Then after, there were 155 million children under 5 years of age stunted, among them 52 million wasted and 41 million overweight. मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने की वजह से सिर्फ वेस्टिंग ही देखने को मिलती है, देयर आर चांसेस ऑफ ओवरवेट ऑल्सो. देन आफ्टर, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, तो 21% चांसेस ऑफ लोअर रिस्क इन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटीज इन babies. Then after, it is estimated that breastfeeding reduces the risk of overweight and obesity by about compared to formula feeding. मतलब फॉर्मूला फीडिंग से 10% ज़्यादा, फॉर्मूला फीडिंग अगर हम करवा रहे हैं तो 10% ज़्यादा चांसेस है बेबी को ओबेसिटी होने के. Then after, what is the present condition in India? So we have a very great asset that in India, an average Indian mother who has the poor nutritional status, she has the capacity to breastfeed her infant for prolonged period. Prolonged means nearly about 2 years, because and also the National Family Health Survey data indicates that 54.9% children are exclusively breastfed, and exclusive breastfeeding is on an average for 3 months. अब हम देखेंगे आउटपुट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन. मतलब इधर एक साइड है मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, मतलब 0 से लेकर 38 मंथ्स, और पर डे मीन आउटपुट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क क्या है. तो हम देख सकते हैं कि 6 महीने तक, मतलब जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम पीरियड है उसमें ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है पर डे मीन आउटपुट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की, विच इज़ 730 आई थिंक. एंड देन आफ्टर धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जाता है. So it is very essential to breastfeed baby at least during the first 6 months. Then what is the Ayurveda aspect or ecological care? Clinical aspect of breast milk is अव्याहतं बलम अंगो आयु अरोगो वर्धते सुखम शिशु धात्री अनापत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षणम. Means what is the clinical features of pure breast milk are unimpaired, which gives unimpaired strength, body parts and longevity, which is sufficient growth, which gives sufficient growth and development of disease-free state along with comfortable state of child and mother. These are the features of pure milk. And then what is the physical parameters of breast milk? According to Ayurveda, they are stanya sampattu prakriti varna rasa sparsham उदकपात्रे च दुह्यमानम उदकम व्यति प्रकृति भूतत्वात् तत् पुष्टिकरम आरोग्यकरम च इति. That means the breast milk who has the prakrit varna, that means natural color, taste, touch, smell, etc. And when it is mixed with the water, it mixes evenly with water, and which gives pushti means normal growth, and arogyakaram with, and also the good health and nourishment. Same like yat kshiram udake kshiptam eki bhavati panduram maduram cha vivarnam cha prasannam tad vinirdishit. Here in this look, there are also the physical parameters of the breast milk, like when it is mixed with water, it mixes evenly. Pandura means somewhat yellowish in color, taste sweet in taste, and avivarnam means there is a natural color, not any abnormal color, and prasannam tad vinirdishit, which gives the normal growth and good health. Then what are the benefits? The carbohydrate present in breast milk, which is lactose, and it is also in a high concentration, that is 6 to 7 gram per deciliter. It is the galactose necessary for the formation of galactocerebroside, and as it is cerebroside, it is very essential for the development of brain. It also helps in absorption of calcium and enhances the growth of lactobacilli, which is the good bacteria of intestine, helps in the absorption of vitamins. Then after, the proteins, which is present in a low concentration, they are present in the form of lactalbumin and lactoglobulin, which is easily digested. Then after, what is the immunological superiority? As the breast milk contains the protective factors like immunoglobulin, mainly secretory IgA, macrophages, lymphocytes, lactoferrin, lysozyme, bifidus factor, and interferon, among others. So the babies who have the breast milk regularly, they are less likely to have the recurrent infections like diarrhea, dehydration, and respiratory infections. The breastfed baby is 14 times less likely to die of diarrhea and almost 4 times less likely to die of respiratory infection, as they have immunological superiority. Then protection against other illness. Breastfed babies have a lower risk of allergy, ear infections, and orthodontic problems. They have a lower risk of diabetes, heart disease, and lymphoma in later life. Other illness से protection
क्योंकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स का जो प्रपोर्शन है इट इज़ इन अ परफेक्ट फॉर्म, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ ये सब होने के चांसेस नहीं है। अगर फैट कंटेंट जो है जो प्रपोर्शन में होना चाहिए और जो फॉर्म में होना चाहिए उससे अगर वो ज़्यादा है तो डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम लाइक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी अगर जितने होने चाहिए उससे कम है तो रिकरेंट इन्फेक्शंस और जो बाकी के एलर्जी और वो सब है उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। Then after vitamins and minerals, the quantity and bioavailability of vitamins and minerals is sufficient to the needs of the baby in the first 6 months of life. Then water and electrolyte content. Breast milk has a water content of 88% and hence a breastfed baby does not require any additional water in the first few months of life even during summer months. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि सप्लीमेंट्स में वाटर भी इंक्लूड है, कि पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी 88% वाटर होता है, समर में भी ज़रूरत नहीं होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वाटर का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है। देन आफ्टर मेंटल ग्रोथ, babies who are breastfed are better bonded to their mothers. Studies have shown that babies who were breastfed had a higher IQ than those babies who were given the forms of milk. देन आफ्टर इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि फीडिंग प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी दी गई है कि एटलीस्ट 8 से 12 टाइम तो डेली ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही चाहिए दिन में, और ऑडिबल एंड विजिबल स्वेलोइंग होनी चाहिए हमें। देन आफ्टर सस्टेन्ड रिदमिक सक और रिलैक्स्ड आर्म्स एंड हैंड्स, मॉइस्ट माउथ, रेगुलर सोक्ड एंड हैविंग नैपीज अबाउट 6 to 8 वेट डाइपर्स इन 24 आवर्स। अगर उसने प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग अगर प्रॉपर हो रही है तो वाटर प्रोपोर्शन भी मेंटेन रहेगा। देन आफ्टर एवरेज डेली वेट गेन ऑफ 20 to 40 ग्राम्स एंड गो टू स्लीप एंड कम्फर्ट आफ्टर फीडिंग। अगर वो भूखा रह गया है तो उसको नींद नहीं आएगी। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मिल्क न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन मिल्क एंड एनिमल मिल्क? So almost the fat content is similar in three of the milks. There is a less protein content in human milk as it is difficult to digest, and lactose proportion is more. Then after bacterial contaminants are zero in human milk, whereas animal milk और formula milk में ज़्यादा देखने को मिल सकता है. Then after anti-infective factors are also present in human milk naturally, और बाकी के दोनों में नहीं होता है. ग्रोथ फैक्टर भी सिर्फ ह्यूमन मिल्क में ही देखने को मिल सकते हैं, एनिमल मिल्क और फार्मूला मिल्क में नहीं. प्रोटीन कंटेंट जो है कम है, लेकिन जितना भी है इजी टू डाइजेस्ट, और एनिमल मिल्क और फार्मूला मिल्क में ज़्यादा होता है और डाइजेशन के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है. देन आफ्टर फैट कंटेंट्स, वो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स ही होते हैं और अलॉन्ग विद लाइपेज जो फैट डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. बाकी दोनों में एसेंशियल फैटी एसिड भी कम होते हैं और लाइपेज भी नहीं होता. देन आफ्टर आयरन भी होता है स्मॉल अमाउंट में और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और विटामिन्स आर इनफ एंड वाटर कंटेंट इज़ ऑल्सो इनफ. जबकि एनिमल मिल्क में एक्स्ट्रा नीडेड वाटर होता है और फार्मूला मिल्क में भी एक्स्ट्रा होता है जो कि ज़रूरी नहीं है. अब हम आगे देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग टू द मदर. तो ब्रेस्ट फीडिंग सून आफ्टर बर्थ हेल्प्स इन द यूट्राइन इन्वोल्यूशन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज. तो यहाँ पर दो टर्म्स है. फर्स्ट इज़ यूट्राइन इन्वोल्यूशन. तो आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो अबव अम्बिलिकस उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो यूट्रस का फिर से अपनी पोजीशन पे आना उसको यूट्राइन इन्वोल्यूशन बोलते हैं. तो वो ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग ईजिली हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए दो हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन दोनों प्रोसीजर के दौरान सिक्रेट होते हैं मदर की बॉडी में. तो इसकी वजह से पीपीएच जो हेमरेज होता है, ब्लड लॉस, वो कम हो जाता है. देन आफ्टर इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक्टेशनल एमेनोरिया. हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब जो मेंसेस होते हैं वो भी रिज्यूम नहीं होते और प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होते अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तो. इफ द मदर हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी एंड हैज़ नॉट रिज्यूम द मेंसेस, देन देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 6 months ऑफ डिलीवरी. देन आफ्टर व्हाट आर द बेनिफिट्स टू फैमिली एंड सोसाइटी. तो पहले लिखा है सेव्स द मनी. तो हाउ डज इट सेव्स मनी? तो जैसे हमने पहले देखा कि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं बेबी को, तो देर आर नो चांसेस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस है या फिर और भी बीमारी, तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है और उसकी वजह से पैसे भी
बचते हैं। दूसरा एक ज़रिया है कि फार्मूला मिल्क और जो भी आज बाहर मार्केट में देखने को मिलते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं और जिसको देने का कोई मीनिंग भी नहीं होता है। जैसे हमने आगे कंपैरिजन में देखा कि ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क और फार्मूला मिल्क तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप परचेस करके उसको देते भी हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। सो it saves the money, then promotes the family planning, जैसे हमने देखा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। then it decreases needs for hospitalization and it contributes to child survival. this is the best benefit for family and society कि चाइल्ड सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमने ग्लोबल कंडीशन में देखा कि 21% चांसेस कम हो जाते हैं कोमॉर्बिडिटीज़ के और इवन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के। सो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स आर द हेल्दी इन्फेंट्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मदर्स मिल्क एंड फार्मूला मिल्क। तो इनिशियली अगर हम मार्केट से परचेस करते हैं फार्मूला मिल्क तो उसमें 3 डेज़ का जो बेबी है उसको भी सेम ही न्यूट्रिएंट्स देंगे और फार्मूला मिल्क अगर 3 मंथ्स के बेबी को अगर हम देंगे तो उसमें भी सेम ही न्यूट्रिएंट्स होंगे। और कंपोजिशन के टाइम पे हमने देखा था कि कंपोजिशन बदलता रहता है बेबी की नीड के हिसाब से और वो ड्यूरिंग होल लैक्टेशन पीरियड उसमें चेंजेस आते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स के कंसंट्रेशन में। तो सबसे पहले मोटिवेट द मदर बिफोर बर्थ। उसको मदर को जो है बर्थ होने के पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मोटिवेट करना है बिकॉज समटाइम्स मदर्स आर नर्वस। अगर किसी को फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं होता है क्या कैसे करना है, तो दैट्स वाई मोटिवेट देम। सिलेक्ट द राइट प्लेस फॉर द डिलीवरी। अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग्स प्रायर टू डिलीवरी, क्योंकि मदर जो भी ड्रग्स लेती है वो अगर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर उस ब्रेस्ट मिल्क से सीक्रेट हो रही है तो फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। देन आफ्टर इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग सून आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि फर्स्ट वीक में कोलोस्ट्रम जो है सीक्रेट होता है, इसलिए सून आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। गिव कोलोस्ट्रम एंड अवॉइड द प्रीलैक्टियल फीड्स। देन हेल्प द बेबी सक्ल इन अ गुड पोजिशन। अगर बेबी कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं है तो वो थक जाएगा और फिर अच्छे से सक नहीं कर पाएगा। रिकमेंडेड डिमांड फीडिंग, जिस हिसाब से अगर इसलिए बोला है कि फीडिंग जो है दिन में 8 से 12 बार करवानी चाहिए टू सेटिस्फाई द डिमांड। कंटिन्यू ईच फीड एज लॉन्ग एज बेबी वांट्स। डू नॉट वॉश निपल बिफोर एंड आफ्टर एवरी फीड। कॉशन मदर इन एडवांस अबाउट द एंगेजमेंट। Then there are 4 key points for the position of both mother and baby. Firstly, baby's head in line with the body. हाँ, अगर बेबी का नेक ऊपर होल्ड करके रखा है और उसकी बॉडी को नीचे से सपोर्ट नहीं किया है तो फिर नेक के ऊपर स्ट्रेच आ सकता है, क्योंकि इनिशियली बेबी के जो भी मसल्स है, लिगामेंट्स सब कमज़ोर होते हैं, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाकी है। सो दैट जो बेबी की हेडलाइन और बॉडी की लाइन जो है एक लाइन में होना चाहिए, मतलब कि होल बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए। बेबी इज टर्न टूवर्ड्स द मदर। देन बेबीज एब्डोमिन टचिंग द मदर्स एब्डोमिन। एक टर्म है KMC, दैट इज़ कांगारू मदर केयर, जो कि प्रीटर्म बेबीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो उसमें भी ये पॉइंट मेंशन किया है कि बेबी की जो पोजीशन है वो ऐसे होती है कि बेबी का जो एब्डोमिन है वो मदर के एब्डोमिन को टच करे। Then after research data about breastfeeding, one other thing in the position is लैचिंग। एक टर्म होता है लैच करना, मतलब जब भी ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तब उसको जो ब्रेस्ट का जो एरियोला है, मतलब जो ब्लैक पोर्शन है वो पूरा बेबी के माउथ के अंदर होना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो निप्पल को ही सक करे, क्योंकि जो एरियोला रीजन है वहाँ पर जो है लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। जब भी उनके ऊपर सकिंग की वजह से प्रेशर आता है तभी ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी अच्छे से अंदर ले पाएगा। सिर्फ निप्पल सक करने की वजह से बेबी थक जाएगा और उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर रिसर्च डेटा, स्केलिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कुड सेव द लाइव्स ऑफ मोर देन 8,20,000 चिल्ड्रन अंडर द एज 5। ये एक रिसर्च है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के रेट को बढ़ाया जाए, जो कि हमने प्रेजेंट कंडीशन ग्लोबली और इंडिया में देखा था, उससे भी अगर और बढ़ाया जाए तो 8 लाख नियर अबाउट 8 lakhs चिल्ड्रन वर सेव। Then after under the age of 5, breastfeeding is associated with an IQ increases of 3 to 4 points। जो हमने बेनिफिट्स में देखा था मेंटल ग्रोथ के लिए वो कैसे हेल्प करता है, तो IQ बढ़ सकती है 3 से 4 पॉइंट्स तक। Children who are breastfed for longer periods have lower infections, morbidity and mortality rates than children who are breastfed for shorter period or who are not breastfed। तो ये भी लोकल जो लोअर इन्फेक्शियस मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का पॉइंट हमने डिस्कस किया था। देन आफ्टर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर एसोसिएटेड विद अ रिडक्शन in child's risk of overweight or obesity।
देन एक पॉइंट है कि मॉम्स एक्सपेक्टिंग ट्विंस आरंट ऑलवेज एनकरेज टू कंसिडर ब्रेस्ट फीडिंग, बट ट्विंस एंड इवन ट्रिपलेट्स कैन बी ब्रेस्ट फेड एक्सक्लूसिवली। तो ये पॉइंट है कि अगर किसी मदर को ट्विंस बेबी हुए हैं तो अंदर नेचुरली ऐसा सेटअप होता है कि दोनों को सफिशिएंटली इवन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, उतना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली होता ही है। तो ऐसे कुछ ही बहुत ही रेयरली केसेस होंगे कि इनफ मिल्क नहीं है, बाकी तो मिल्क सप्लाई जो है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि मिल्क सप्लाई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. So this is all about the research data. Thank you so much.